meaning of poverty. So once again we have to think about it. What is the meaning of poverty? So in front of you it should be given and written meaning of poverty. Clear? So poverty has a many phases which have been changing from place to place and across time. Poverty is the inability in fulfill the minimum requirements of life. We can say, in other words, people refers to the state in the which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. The minimum requirement include food, clothing, housing, education, and health facilities. If these types of facilities we can't able to develop, means we are poor. In a development countries, we can say in developing country, a large productions of the population is depressed on even minimum amenities of the life of required as a long time. It can be said that such a national lives in poverty, grows in the poverty of remain to vicious circle of poverty, we can say. So in front of you I had explained meaning of poverty. Simple word we can say, poverty has a many phases which have been changing from place to place and cross time. In very easy language we can able to explain, poverty is the inability to fulfill the minimum requirement of life. Same thing we have to discuss, who are poor, गरीब कौन है. अब गरीबों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो पहले हमें गरीबी को जाननी होगी. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस हु आर पुअर. You would have noticed that in all localities and neighborhoods, both of rural and urban areas, there are some of us who are poor and some who are rich. Once again listen, you would have noticed that in all localities and neighborhoods, both in rural and urban areas, there are some of us who are poor and some who are rich. Same we can say, starvation of hunger are the key feature of poorest householders. गरीबी की सबसे बड़ी पहचान है भूख. अगर इंसान भूखा सो जाता है, बिना खाए रहता है, तो वही गरीब है. द पुअर लेक बेसिस ऑफ लिटरेसी द स्किल दैट हैव द वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. मीन्स हम उससे ये जान सकते हैं कि उसके पास सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड मौके उसको मिलते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और भूख के कगार पे है. ठीक है. पुअर पीपुल आर फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट. गरीब हमेशा रोज़गार के लिए परेशान होता है, और रोज़गार भी मिलता है तो इस्टेब्लिश नहीं होती है, वो कंटिन्यू नहीं होता है. 2 से 4 दिन के लिए कहीं मजदूरी करेगा, 10 दिन कहीं और मजदूरी करेगा, फिर वो काम कहीं और करेगा. ये गरीब के लिए प्रॉब्लम ही होती है. दोज हु कैन नॉट फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड पुअर. जो अपने जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों को भी फुलफिल या ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, उसी को गरीब कहा जाता है. व्हेन मिनिमम नीड ऑफ लाइफ आर नॉट फुलफिल्ड, जब हमारे जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, देयर विल बी द लॉट ऑफ डिसकम्फोर्ट, पेन, सफरेंस एंड एमंग द मासेस. हमें अनेक प्रकार के दुख, दर्द और कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, जिसके द्वारा हम छोटे छोटे ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी हम गरीब हैं. उसी को गरीबी कही जाती है. अनदर है कि हम अब गरीबी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में गरीबी की क्या रेशियो है और गरीबी क्या है. ठीक है. तो हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं. पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़. अब अर्बन और रूरल एरिया में गरीब क्या हैं और कैसे हैं, इनके बारे में हमें जानना है. तो आपको आगे बताया जा रहा है, पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरिया
Poverty in India has been viewed from two areas, urban and rural. With the help of that we can say in urban area, पहला है urban area. अर्बन एरिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा पुअर पीपुल लाइक पुश कार्ट वेंडर, स्टील कोबलर, वोमैन हु इज स्टिचिंग फ्लावर्स, रैंक पिकर्स, vendors and beggars possess few assets. They reside the hutment with the walls made the bagged mud and roof made of grasses, thatch, bamboo and wooden. The poorest of them do not even have the some dwellings. We can say द अर्बन एरिया में गरीबी को अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कोबलर्स मीन्स जो आपके चप्पल जूते को सिलते हैं वो, और कार्ट वेंडर इक्का गाड़ी चलाने वाले, ऐसी औरतें जो फूल बाग बगीचे तोड़ती हैं और बेचती हैं और जीवन यापन करती हैं, भिखारी, इन सब लोगों को अगर आप देखेंगे, इनके घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घास के बने झोपड़े में या बांस के बम्बू से बने हुए झोपड़े में या घास फूस के बनाए हुए घर में ही ये लोग रहते हैं, जिसे गरीबी कही जाती है, या ये गरीबी नीचे रेखा से भी बहुत नीचे होते हैं और इनके जीवन यापन करने का तरीका भी सबसे डल होता है। अब रूरल एरिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इन रूरल एरिया मेनी ऑफ देम ऑफ लैंडलेस। रूरल एरिया में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, ठीक है। इवन ऑफ सम ऑफ देम possesses लैंड, इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। आप देखेंगे कि वहीं सूखे या ख़राब ज़मीन पे ही रहते हैं या काम करते हैं या खेती करते हो, ठीक। मेनी रूल्स पीपल डू नॉट गेट हैव इवन द 2 meals ऑफ द डे। ऐसे बहुत से रूरल लोग हैं जो सुबह से शाम तक का 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते हैं, उन्हें गरीब कहा जाता है, गरीबी कही जाती है। जो सुबह से शाम तक काम भी करते होंगे तो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, जीवन यापन के लिए काम करते हैं, या कभी कभी उन्हें सुबह से शाम तक खाने भी नसीब नहीं होते हैं, दैट वन इज़ अ कॉल पुअर, उसे गरीबी कही जाती है। वंस अगेन लिसन, इवन इफ सम ऑफ द पोसेस लैंड इफ इट इज़ नॉट ड्राई और वेस्ट लैंड, much rural peoples do not get have the even 2 meals in a day. Rural we can say poor work as landless agriculture, labor, cultivator with very small land holdings, landless labor interchanged with the variety of non-agriculture job, trends cultivation with the small land holdings. With the help of that we can say they lack basic literacy of skills and have the very limited economic opportunity. Same way we can able to explain characters of poor people. अब हम यहाँ गरीबों के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो गरीबी में सबसे पहले हंगर एंड स्टार्वेशन, भूख, ठीक। एक गरीब इंसान पहले भूख से परेशान होता है, मीन्स ही कांट एबल टू टेक फूड। स्टार्वेशन, हंगर इज द की ऑफ फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्डर। एक गरीब इंसान की सबसे पहली ज़रूरत खाना है, अगर वो भूख से परेशान है तो वो सबसे बड़ा गरीब है। गरीबी की सबसे प्रथम पहचान उसकी भूख है, हंगर। अगर वो 2 टाइम का अनाज नहीं खा पा रहा मतलब वो उस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दूसरी चीज़ है पुअर हेल्थ, अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी वो गरीब ही है, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही है वो गरीब नहीं माना जाएगा, बिकॉज शरीर है तो हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। आप शरीर हैं, स्वस्थ हैं तो आप कहीं भी काम करके जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन एक बीमार इंसान कभी भी कोई जीवन यापन नहीं कर सकता। तीसरा है बैड ट्रैप। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द बैड ट्रैप्स। They borrowed from the money lend which change high rate of interest that lend that into the economic indebtedness. That one is called bad trap. Fourth one is a given weak bargaining power. ठीक है, the poor are very high unvariable, they are not able to negotiable
their legal wages of employees. We can say the literacy show that unable to employment. Fifth one is given in front of you, lack of faculties and electricity and water. जिसके पास पानी, बिजली और सारी सुविधाओं की कमी है वो भी गरीबी का ही एक पहचान है। अगला है जनरल इनक्वलिटी, सामान्य, ठीक है। इक्वलिटी मतलब होता है बराबरी, और वो सामान्यतः किसी की बराबरी भी नहीं कर पाएगा जो गरीब होगा। तो गरीब इंसान किसी की बराबरी भी नहीं कर सकता। दिस इज़ द प्रॉब्लम। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू नो दीज ऑल थिंग्स। एंड नेक्स्ट वन इज गिवन 7th इन फ्रंट ऑफ यू, identification of basis of occupation. Scholars identify the poor of the basis of their occupational and ownership of assets. They state that the rural poor work mainly of landless agricultural labors, cultivation with very small land holdings. With the help of that we can able to know these all things. Okay. Another thing is given in front of you, marginal urban area. The urban poor is largely an overflow the rural poor who had managed the urban area in the such as alternative employment and livelihood labor, who are veritably casual jobs, and the self-employed who sell the varieties of things and roadside and they establish the various activities. Now you have to listen once again, character of poor people. एक गरीब इंसान के क्या कैरेक्टर होते हैं उसे हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। तो पहला है हंगर, दूसरा है पुअर हेल्थ, तीसरा है डेब्ट ट्रैप, चौथा है वीक बार्गेनिंग पावर, पांचवा है lack of facilities of electricity and water, छठवां है जनरल इनइक्वलिटी, सातवां है आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, और आठवां है मार्जिनेशन टू अर्बन एरिया. नाउ दिस इज द